हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। कहते हैं अभ्यास व्यक्ति का आईना होता है। हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। नमस्कार, मैं दिव्यांशी और आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे शख्सियत जिनका संघर्ष वाकई में बहुत बड़ा है। वो तब तक नहीं रुके जब तक उनको उनकी मंजिल नहीं रुक गई। We are so pleased to have Mr. Krishna Gopal Meena ji, IPS of 2020 बैच, जिन्होंने 6th attempt में UPSC CSE क्लियर किया। Welcome sir to Study IQ. Thank you, Divyanshi. I'm honored and I'm privileged to be here and to be able to communicate to so many, such a large audience. So I hope this session turns out to be useful to some of them at least. Definitely, it will be very fruitful to larger audience and मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सर आपकी जर्नी रही है, 6th attempt में आपने इसे क्लियर किया, तो I guess lot of people will be connecting and taking it as an inspiration to move ahead and continue their journey of persistence. Thank you. सर, हमने ये तो बात कर ली कि यू आर IPS of 2020 बैच, बट मैं सभी ऑडियंस को बता दूं कि सर इज एन इंजीनियर. ही वाज आल्सो वर्किंग एज अ GST इंस्पेक्टर एंड उसके बाद UPSC की जर्नी शुरू हुई. सर, हमेशा से ही ये था कि UPSC CSE करना है. IPS was always a choice. No, to be honest, in fact, I can't claim to be one of those जो शुरू से इतने clear थे about their choices. I was, in fact, it was not even one of the choices. It was when I was like 4. I started preparation in 2014 when I was already 24, and it was this decision came very late in my life. और काफी चीजें, काफी factors ऐसे हुए that I started to think about it. It was not something that I had always thought about. And yeah, but once I got into the preparation, it was so interesting, and it was something that made I was really interested in the preparation, and I don't know, somehow वो एक ड्रीम बनता गया, कोशिश करते गए और फिर एक बार शुरू किया तो फिर रुक नहीं सकी इसको. सर, जैसे आपने कहा कि इट वाज नॉट अ चॉइस एंड एक बार आप प्रिपरेटरी मोड में आ गए, देन यू स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट. बट सर, मैं आपका जानना चाहती हूँ, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड स्टार्टिंग द प्रिपरेशन? So the thing is कि I tried different options. I was like more interested in doing MS and going abroad, but it's not that easy. So that was my first priority when I graduated from my college. But that wasn't easy. And then I did a lot of other jobs. I got selected into some other exams, but nothing actually interested me, or nothing. There was something missing, or the profile, the job profile was so interesting about this. ऐसा नहीं कि of course everyone knows about UPSC in India, but so I already knew, but somehow वो interest धीरे धीरे जगा. And for my IES, I also tried IES exam. So जब वो मैं दे रहा था and I started reading GS, interest बना, धीरे धीरे confidence बना. So it was a mix of a lot of factors. But the fact कि जो मैंने और exams दिए या जो मैंने और jobs try किए, they did not sort of satisfy me. And I thought this exam is like a perfect blend of, there is so much to do. There's just so much diversity in the job. I'm a person who gets bored very easily with stuff. So I thought कि इसमें diversity बहुत है इस job में. And then there's also respect. And so there were a lot of factors जिसकी वजह से मैंने start किया. I don't have any big statements to make कि ऐसा कुछ हुआ suddenly वैसा नहीं. I just started. And yeah. So just the job profile, I really was interested in the job profile. It was a very, very diverse and interesting thing. So that was the main factor. कि जब मुझे और jobs में वो satisfaction नहीं मिला, then I started searching कि ठीक है, this seems really interesting and I should try, at least give it a try. So that's how it began. So we can say that the dynamics of the job attracted towards the IPS preparation, CSE preparation. Yeah. So how should one assess themselves before diving into the preparation? Is there some criteria one should already keep up in their minds before starting the preparation? So yeah, so Devanshi, it's a very subjective question, but my take is कि yes, कुछ criteria तो होता है. It's not based on intelligence. It's definitely not based on intelligence, and it's also not based on कि आपका graduation क्या है and how good a student you have been, and if you've been a 90. I've been a 60%er throughout my life. So, but criteria is if you're really disciplined.
or if you can become disciplined, and if you're ready to work hard, if you have the sort of motivation, because this exam is ये इतना tough है कि this will bog you down, kabhi to you'll fall. And you have to have that motivation and that dedication, perseverance. So you need a lot of fighting spirit. So if you have that, if you're ready to work hard and smart, I guess you'll be like you're good to go. You can easily think about preparing for this exam. डेफिनेटली सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली कि फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए, और अगर हम सर के भी एक्सपीरियंस से देखें तो 6 अटेम्प्ट्स डेफिनेटली वो एक क्वालिटी जो फाइटिंग स्पिरिट की थी वो बखूबी हमें यहाँ पे दिख रही है. हाउ टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन बिफोर डाइविंग इनटू द प्रिपरेशन? As I said, the exam UPSC is looking for generalists and not specialists. So exam का syllabus ऐसा नहीं है that it's not a very technical criteria that you need to look for. As I said, definitely there are things that you need to take care of. कि आपको you have to have that in you कि आपको prepare करना है और ठीक से करना है. आप टाइम पास के लिए you think कि आप टाइम पास के लिए एग्जाम निकाल पाएंगे, तो that's not possible. So that is one. Apart from that, if you come to more technical things, so you can always, the syllabus is out there on the internet. So, you can just take a look at the syllabus. If you're interested in the subjects, if you feel connected with it, there are, other criteria such as आपको जैसे आप optional अपना देख सकते हैं कि if there is an optional that you're really into और आप उसको तैयार कर पाएंगे. सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको असेस करने की जरूरत है. आप सभी जनरल सब्जेक्ट्स हैं, और once you there's just so much material available, so much guidance available. अगर आप करना चाहते हैं तो you'll be able to do it. So बहुत ज्यादा असेस करने की जरूरत नहीं. Only thing is कि you have to be ready for a fight. That is all. सर आपने अभी सिलेबस और सब्जेक्ट्स की बात की, तो हम इसी पे बात करते हैं. सबसे अप्रोप्रिएट तरीका क्या है सिलेबस को अप्रीहेंड करने का? क्योंकि हम कई बार देखें, वी नो द जनरल सब्जेक्ट्स, अगर हम पॉलिटी की बात कर लें, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, बट काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स भी इन टॉपिक्स के अंदर होते हैं, इन सब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं. तो सिलेबस को सही तरीके से अप्रीहेंशन किस तरीके से करें? So Divyanshi, मुझे ऐसा लगता है कि first of all you need to go through the syllabus thoroughly. एक बार, दो बार, तीन बार. You have to remember every word that is there. मतलब I know it may sound strange, but I feel that आपको syllabus याद होना चाहिए. So every time you're reading a newspaper, आप सीधा click कर सकते हैं कि this point may be used under that section of the syllabus. ठीक है, चाहे वो मेंस का हो या फिर प्रीलिम्स में, that actually प्रीलिम्स का syllabus is very very it's not very properly defined. वो बहुत छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है, and there's not much details available, but the mains वाला syllabus I feel is really important, and that is one that should become the guiding light for aspirants. So उसको बहुत बार देखना, उसके जो सब headings हैं उन पे ध्यान देना, not just the headings. Also, as you rightly pointed out कि हम main subjects तो उठा लेते हैं, but we tend to ignore the fringe areas. So उनको प्रिपेयर करना, स्पेशली दिस इज ट्रू फॉर प्रीलिम्स. जैसे प्रीलिम्स में आईआर का ऐसा कोई कंपोनेंट बहुत स्पेसिफिकली नहीं मेंशन होता है, या देयर आर एरियाज सच एज एग्रीकल्चर या फिर मैप मार्किंग. तो ये ऐसा नहीं है, दीज आर पार्ट ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स, राइट? सो देयर आर पीपल हु टेंड टू समटाइम्स फॉरगेट टू प्रिपेयर फॉर दीज स्पेसिफिकली. So what I used to do was कि मैं इनको भी एक अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता था. I knew that I have to devote some 3-4 days to agriculture. ऐसा नहीं कि I'll devote equal number of days as I would to say polity, but I will make sure that I treat them as a separate subject, and I prepare specifically for them. Also, last year का जो previous year के जो questions होते हैं, and जो test series के questions होते हैं, they really help in this regard, because if you're only doing जो core syllabus है, जो core subjects हैं, then you'll definitely struggle with the test series. You'll definitely struggle answering the previous year questions, and they can be your guiding light. आप वहाँ से देख सकते हैं clearly कि आपको जो है, these are the areas that I'm repeatedly missing out on, and then you have to specifically prepare for those. So syllabus का बहुत ही thorough understanding होना बहुत जरूरी है. Reading between the lines is also important. Then test series or previous year questions से आप देख सकते हैं कि how much you've covered the syllabus. And there's also one more point जो I used to do in the initial few attempts. So when I used to make newspaper के notes, so what I would do is कि
जो भी न्यूज है आई वुड, मैं डे वाइज नोट्स नहीं बनाता था, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाता था. So paper 1 के notes, paper 2 के notes. So under paper 2, then I'll have polity and IR and everything. Then polity maybe I'll have this is about executive and this is about center state relations. So this was the structure that I followed for making notes, was more or less the structure of the syllabus. So that helps you categorize news, categorize, compartmentalize your preparation, and also leads to a better understanding of the syllabus. So I think इतना बहुत है, मतलब this would help you in this. सर आपने 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं जिसमें से 5 बार आपने मेंस दिया, तो प्रीलिम्स यू हैव क्लियर्ड ऑल द टाइम्स. व्हाट वाज द की पॉइंट अगर आपको हाईलाइट करना हो अपनी प्रीलिम स्ट्रैटेजी से? Yeah. So first is की basics. You just can't afford कि आपकी लक्ष्मीकांत पे कमांड नहीं है, आप 10 बार भी रिवीजन कर लें कम है. As many times as you can, as many times as you can. ठीक है. So basics तो आप नहीं छोड़ सकते हैं. If you're missing out questions जिनका जवाब NCERTs में है, if you're missing out questions जो लक्ष्मीकांत के स्पेक्ट्रम में दिया हुआ, so that is a big blunder. So having very very strong command over basics is a must. So that is one thing. Second is कि what we do is, जैसा मैंने बताया कि fringe areas. So अगर आप देख रहे हैं for the past some years, अगर because मैंने इतने attempts दिए हैं, so after a few attempts I started observing the patterns. तो जैसे आपको पता है कि there are areas जो repeatedly पूछे जा रहे हैं map marking में. There is Mediterranean वाला region जो बहुत important हमेशा से रहता है. Then if you go for environmental legislations, जैसे वो जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसके बारे में सवाल आते रहते हैं. सो you should have this observation, strong observation. या तो आप you depend on some coaching or you can do it yourself. You have to have this, you have to find patterns. What are the things that UPSC is asking? और उसके बारे में एक dedicated तैयारी. If you can just jot down the important environmental legislations, if you can jot down the environment जो भी इस तरह के areas हैं, तो it really helps. One more point I'd like to make is कि we often run behind the questions जो एक सवाल या जो 2 सवाल out of the blue एकदम काफी tough सवाल आ गए हैं. And because I was in ORN, Old Rajendra Nagar, so aspirants काफी discuss करते रहते कि वो question कहाँ से, and they'll search for books and they'll actually find the book कि ये इधर से आया था. But I think that's not a very fruitful exercise, क्योंकि आप you're running behind that one question or those 5 questions. Even अगर 5 questions है, I believe कि आप उनको सीधा ignore कर दो. So if it's something very tough, something unheard of, so it's better आप बाकी questions पे focus करें. It's not about 200 marks का exam है, all you have to score is 120, 110, right? तो जो बेसिक्स हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उनको आप मिस नहीं कर सकते. जो एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप वहां से लेके उन पे प्रिपेयर करें. एंड डोंट रन बिहाइंड ये जो कुछ रैंडम क्वेश्चंस बहुत टफ आ जाते हैं. तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ फॉर प्रीलिम्स. बाकी इट इज डाइसी, उसमें लक फैक्टर भी आ जाता है और काफी प्रीलिम्स चेंज होता रहता है. बट देन अगर आप, बिकॉज सी 2014 से एंड 2019-20 वाले जो प्रीलिम्स हैं, there's a sea change, right? But if you stick to some basic rules, तो आप 14 से 19 तक निकाल सकते हैं. So you also keep on changing your strategy as per the demands of the exam. So I think you'll be able to do it. सर हम ये बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन और ये 6th अटेम्प्ट था. इट्स वेरी गुड टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम कहते हैं हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं. तो सर आपने 5 बार मेंस लिखा है, क्या डिफरेंसेस आपने महसूस किया हर एक सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में? और फिर अल्टीमेटली आपने जब लास्ट अटेम्प्ट की अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, तो कैसे, क्या फॉर्मूला आपने यूज किया? वो सक्सेस फॉर्मूला हम जानना चाहते हैं. So basically it's only about not making the same mistakes again. तो अगर आपने गलती एक बार कर दी, because in my initial few attempts I did not have the right guidance, so especially for my optional, that is political science. So I was writing GS type answers. Even for GS, so there was a lot of things that were messed up. And now that I look back, एक तो क्या होता है कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो we feel कि हम we are doing very good, but only when we surpass that stage, जब हम आगे बढ़ जाते हैं, we start doing better, that is when we realize कि हम अच्छा नहीं कर रहे थे. So ये एक बड़ा tough situation होता है इससे निकलना. So सबसे पहली बात जो आपकी मार्कशीट है,
दैट इज योर स्ट्रेंथ, आप उसको उठाएं, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डिड एवरी ईयर। मैंने अपना मार्कशीट उठाया कि कौन से मेरे, आई हैव टू डू अ स्वॉट एनालिसिस, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ मेरी वीकनेस है। दिस पेपर आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल, so there were papers like paper 2 I was not performing well, I was not able to cross 85 marks, 90 marks, and paper 4 ethics I was not able to cross 95 or so. मेरा ऑप्शनल ठीक नहीं था। सो आई वर्क एकदम बिल्कुल मैंने टारगेटेड स्टडी की। सो फॉर पेपर 2 I am unable to recall the name of the officer, but मैंने उनका वीडियो देखा and I tried and followed his advice and it really worked wonders. So जहाँ मैं 85 नहीं क्रॉस कर पा रहा था, I was within a year, it was in 2018, 2017, I did not write mains. उससे पहले I was getting around 85 marks in paper 2 and suddenly I reached to 117, 120 वाला, just by listening to that one video and trying to follow that. जिसमें था कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कोट करें, आप आर्टिकल्स कोट करें, लॉ कमीशन रिकमेंडेशन। सो बेसिकली अभी इतना टेक्निकल शायद हम नहीं जाएंगे इस सवाल में, बट द पॉइंट इज कि आपने मार्कशीट में देखा, आप यहाँ पे लैग कर रहे हैं और आपको उस पर ध्यान देना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर साल प्रोग्रेसिव चेंजेस करते जाएं। GS4 का मैंने अलग से टेस्ट सीरीज लगाया, so I started writing and only after writing I was able to realize कि नहीं, जो पहले मेरे questions थे उनमें थी कमी। I knew the theory part कि ठीक examples quote करने वगैरह वगैरह, but I was not actually doing it। तो ये चीजें कुछ हैं जो धीरे धीरे इम्प्रूव हुई। ऑप्शनल में आई वाज राइटिंग GS टाइप आंसर्स एंड द अप्रोच जो बिल्कुल अलग होनी चाहिए ऑप्शनल के लिए, वो मेरी नहीं थी। सो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये होता गया। ऑल्सो फैक्टर्स सच एज बैलेंसिंग। आप GS और ऑप्शनल की जो प्रिपरेशन है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। प्री और मेंस की प्रिपरेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे क्लियर हुए। देयर आर बेटर पीपल जो बहुत जल्दी से ये चीज को समझ के कर पाए, बट आई टुक माय टाइम एंड ग्रेजुअली एक एक करके मैंने अपनी कमियों को दूर किया। बट आई मेड श्योर कि एक बार जो गलती कर दी है उसको वापस नहीं करना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर जैसे अभी आपने मेंशन किया कि यू हैव रियली ब्रॉट सम मेजर चेंजेस। अगर हम GS2 या GS4 की बात करें, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कोट करने हैं, एग्जाम्पल्स कोट करने, तो सर मैं इसी पे आना चाहती हूँ। जैसे आपको भी पता था कि ये सारे टेक्निक्स आपके आंसर्स को इन्हांस कर सकती हैं, बट उसे कई बार जैसे आपको भी शायद ये डिलेमा था और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को भी डिलेमा होता है कि यूज कैसे करें, सही तरीका क्या है यूज करने का। क्योंकि एग्जामिनेशन जब लिखते हैं तो 7-8 मिनट एक आंसर के लिए लिखता है, उसमें भी स्ट्रक्चरिंग के बाद ये सारी चीजें, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स कैसे कैसे स्ट्रैटेजिकली अपने आंसर में डालें। दिव्यांशी, मुझे लगता है कि जब आप आंसर्स काफी लिखते हो, व्हेन यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, आप टेस्ट सीरीज लिखते हो, तो उस प्रोसेस के साथ ग्रेजुअली यू स्टार्ट लर्निंग कि कहाँ पे क्या यूज करना है। सो द थिंग इज दिस नीड्स प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, राइट? अब रेलेवेंस में भी यू हैव टू डिसाइड कि आपको ये चीज कंक्लूजन में डालना ठीक रहेगा या बॉडी में डालना ठीक रहेगा। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका बेसिकली है कि आपको पता सब होना चाहिए। एंड व्हेन यू हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स क्विकली, तो वो सीधा आपको पता है कि दिस इज गुड फॉर बॉडी, दिस इज गुड फॉर कंक्लूजन पार्ट। So I guess yeah, it takes practice and आप टेस्ट सीरीज लिखें तो ये काफी हो जाता है, but it always has to be relevant. Also, you talked about diagrams and flow charts. To be honest, I don't think कि उनको भी जबरदस्ती किसी के आंसर में, because there are some buzzwords जैसे आंसर राइटिंग is a buzzword and there are flow charts and diagrams. So I feel कि हमें ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज को लेके। So I have friends जो मतलब जबरदस्ती फ्लो चार्ट बनाना या जबरदस्ती diagrams बनाना, unless and until it is required, because here in the academy I have colleagues, you know better people than me, and they have scored better marks even without drawing a single diagram or a single flowchart. तो ऐसा कोई रूल नहीं है। It's just that आपका जो आंसर है वो कोहेरेंट होना चाहिए। It has to make sense, right? And it has to be logical. It has to have the fodder material. अगर वो सब है तो आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते। Both ways will work. So yeah, this is. So how have you done things differently in all the successive attempts? As I said, एक तो मैंने अपने प्रिपरेशन को मोर I streamlined it. मैं इनिशियली काफी सारे, जैसे आई वाज रीडिंग मल्टीपल सोर्सेज,
मैंने धीरे धीरे वो कम किया. आई reduced my number of sources and I increased the time I was giving for revision. तो रिविजन मैंने काफी बढ़ाया, सोर्सेज मैंने काफी कम किए. Then there was factors such as optional, because मेरा optional was my weak area, so I was working really hard on that. As I said, paper 2 paper 4 मैंने GS में भी काम किया, ऑप्शनल में मैंने धीरे धीरे अपना पढ़ा. बट मेन थिंग वाज कि बैलेंसिंग द प्रिपरेशन की. मैं कभी जैसे इफ आई एम प्रिपेयरिंग पेपर 2 तो 4 में कम हो जा रहे हैं, सो दैट वाज वो थोड़ा ट्रिकी एरिया था. सो आई ट्राइड एंड इम्प्रूव दैट. ऑल्सो जैसे हम प्रीलिम्स और मेंस के बीच में देयर इज इतना सा टाइम होता है, एंड वी ट्राई उसमें भी. व्हाट हैपेंस इज, जैसे इनिशियली आई यूज्ड टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम जब तक वो रिजल्ट आता था. सो ऐसे कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स को के ऊपर इम्प्रूव किया. वहां पे आई डिसाइडेड लेटर ऑन, लाइक इन 2018 एंड 19 वाला एग्जाम, आई डिडंट वेस्ट आई थिंक मोर देन 5 days. आई वाज लाइक 5 दिन हो गए, ब्रेक ओवर हो गया, सो आई नीड टू गेट बैक टू स्टडीज. तो थोड़ा वहां पे डिसिप्लिन रहना जरूरी हो जाता है. ऑल्सो देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप कहते हैं स्मार्ट वर्क. सो मेंस में पेपर 4, जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड ऐसे, ये दो ऐसे पेपर हैं जो मुझे लगता है दे आर, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. आई हैव स्कोर्ड अराउंड 120 इन ऐसे, आई स्कोर्ड अराउंड 115 ऐसे. सिमिलरली इन एथिक्स फ्रॉम 90s to 130s. सो यहाँ पे आप विथ लिटिल एफर्ट्स यू कैन लाइक डू वंडर्स, यू कैन गेट अ रियली गुड स्कोर. तो वहां पे अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बेहतर स्ट्रीमलाइन करना, आप 3 दिन एक्स्ट्रा दे देंगे अपनी एथिक्स प्रिपरेशन को, तो उससे काफी चेंजेस आ सकते हैं, रादर देन इग्नोरिंग कि ये तो हो जाएगा, विल राइट. नो, if you prepare for it properly and just give 3-4 more days, तो काफी वहां पे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाता है. सो ये जो इस तरह से थोड़ा प्लान करके कि एथिक्स है, ऐसे है, यहाँ पे आपने अच्छा स्कोर ले लिया, तो वो बहुत इजी हो जाता है बाकी जीएस का, बिकॉज मोरलेस बाकी जीएस में स्कोर वैसा ही रहता है. तो कुछ इस तरह से आप बैलेंस करें, ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी देखें, ये सब का मिक्स करके इट फाइनली बिकम्स. सर, करंट अफेयर्स के क्या सोर्सेज आपके रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे मेजर चंक हो जाता है पूरी प्रिपरेशन के दौरान. या करंट अफेयर्स इज रियली इंपॉर्टेंट, उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते. करंट अफेयर्स के लिए सो इन माय इनिशियल अटेम्प्ट्स आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, and I would recommend that to everyone, because newspaper is not just for current affairs. उससे like आप ऐसे लिखते हैं तो editorials help you a lot. आप editorials पढ़ने की अगर आपको आदत है, वो ऐसे में help करता है, and it also helps you in answer writing अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. Also there are things in newspaper जो इतनी बार repeat होती है, you tend to remember. ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में something that you've read from the magazines आप वो शायद भूल जाएंगे, बट न्यूज़पेपर में अगर आपने repeatedly कुछ पढ़ा है, you tend to remember it for a longer time. सो आई वुड रिकमेंड न्यूज़पेपर. और उसके अलावा आप एक किसी भी एक कोचिंग की जो है मंथली बुकलेट करनी ही चाहिए. अभी थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है प्रीलिम्स, तो आपको एक बुकलेट करनी चाहिए. जैसे आई यूज्ड टू डू विजन वाला जो आता है मटेरियल, एंड आई फाउंड इट रियली गुड. आई हर अटेम्प्ट में आई यूज्ड टू कंपेयर इट विद द अदर सोर्सेज, बट आई फाउंड कि इट वाज गुड. मुझे पर्सनली वो ठीक लगा, तो आई वेंट अहेड विद दैट. बाकी जिसको अगर कोई और भी मटेरियल्स हैं, अच्छे मटेरियल आते हैं, वो देखें, बट मंथली एक मैगजीन और न्यूज़पेपर आई थिंक ये जरूरी है. सर, करंट अफेयर्स की बात करें तो एक सही तरीका क्या है अपने जो स्टैटिक नोट्स हैं उसको करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करने का? आई थिंक कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स बहुत जरूरी है. सो जो आपने कहा कि करंट अफेयर्स के साथ लिंक करने का, सो देयर आर न्यूज, आपको थोड़ा सा इफ यू हैव एन आइडिया कि कौन से टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं. जैसे अब पॉलिटी है तो द टॉपिक ऑफ गवर्नर इज समथिंग वो हर साल रिपीट होता है, राइट. देयर आर इश्यूज सच एज इंटरस्टेट गवर्नमेंट, जैसे वाटर डिस्प्यूट्स में, ये चीजें रिपीट होती ही रहती है. एंड देयर आर सर्टेन एरियाज जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में मिसिंग होते हैं, बट ये जो मटेरियल होते हैं, दे फाइंड सम रियली गुड मटेरियल. तो आपको आई थिंक आपको हमेशा यू शुड, मैं तो यही करता था कि आई वुड ऐड दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देन एंड देयर इन माय बुक. तो इन द एंड यू हैव जस्ट वन सोर्स टू कवर, अदरवाइज वो फिर 2-3-4 सोर्सेस हो जाते हैं, इट्स रियली ट्रिकी टू फिनिश इट ऑफ. तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इवन जैसे जैसे आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड उस वक्त आपको वक्त नहीं मिला, तो प्रीलिम्स के बाद के 10 दिन आप निकालें इस चीज के लिए कि जैसे पीटी 365 आती है, तो आपने जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा, एक बहुत ही शॉर्ट जो है फॉर्मेट में आप अपनी लक्ष्मीकांत में ऐड कर लें, या अपने स्पेक्ट्रम में, सॉरी स्पेक्ट्रम में तो करंट अफेयर दिया था, बट इकोनॉमिक्स में अपना जो भी मटीरियल है उसमें ऐड कर लिया. तो आई थिंक इस तरह से आप अपना जो है कंसोलिडेट करते हुए चलें,
अगर नहीं भी हो पाता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि ये जो बुक्स हैं जैसे विजन वाली जो ग्लिटर, इट्स वेरी हैवी, इट्स वेरी लोडेड, तो आप उसका ऐड करना चाहें या नहीं हो पाए, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, आप वहां से कर सकते हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव वन सोर्स। सर ये अगला क्वेश्चन जो है वो एक जनरल क्वेश्चन है, काफ़ी लेमैन है। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं एकदम स्क्रैच से तैयारी शुरू कर रहे हैं, चाहे वो अपने ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया है या फिर ग्रेजुएशन में है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइस कि आप साथ साथ स्टैटिक के आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बट अगर उनके पास आईआर का कुछ, इंटरनेशनल रिलेशंस का कुछ आर्टिकल आ गया है, इकोनॉमी का कोई आर्टिकल आ गया, एंड दे हैव डू नॉट हैव बैकग्राउंड अबाउट दीज, तो इस केस में उनको कैसे पढ़ना है करंट अफेयर्स? आई थिंक आपको ये जो आपने प्रॉब्लम बताई, इट्स अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम। ये इनिशियली आई थिंक फर्स्ट 5-6 मंथ्स इनटू योर प्रिपरेशन ये रहता है, बट आई थिंक और मैं इसमें बहुत ही जनरली बिलीव करता हूँ कि गूगल, विकिपीडिया, ये सब आपके बिल्कुल हमेशा रेडी होने चाहिए। सो यू नो, आई वुड रिकमेंड कि आप स्टैटिक भी करें और आप करंट भी करें, एंड नो डाउट करंट में कई ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो आपको नहीं पता होंगे, यू स्टार्ट गूगलिंग देम, यू स्टार्ट लुकिंग ऑन विकिपीडिया, और इट वुड इनफैक्ट वर्क। देखिए, जो चीज आपने पढ़ी है, मुझे ऐसा लगा कि जो चीज आपने पढ़ी है वो आप भूल जाते हैं, पर जो चीज आपने सर्च करके कहीं नोट किया है ना, वो आप नहीं भूलते हैं। सो इट ओनली एड्स ऑन टू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, वो आपको याद भी रहता है, सो और डबल हो जाएगा तो रिविजन हो जाएगा। सो आई, मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप पहले स्टैटिक कवर करें देन यू नो, आई थिंक आप दोनों साइमल्टेनियसली चलाएं, पैरेलल चलाएं, थोड़े से कंफ्यूजन होंगे, बट आफ्टर 3-4 मंथ्स यूल बी मोर कंफर्टेबल, वहां पे स्टैटिक में भी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे एंड करंट में भी आप इतना सर्च कर चुके होंगे, सो यू मोर और लेस नो अबाउट द टॉपिक्स दैट आर जनरली इन न्यूज। सो साइमल्टेनियसली चलाना ही आई थिंक इज द राइट ऑप्शन। सब PSIR was your optional. कई बार ऐसा होता है कि when an aspirant is failing in attempts दे रहे हैं तो they change their optional. What kept you stick with the same optional till your sixth attempt? Yeah. So, to be honest, एक फैक्टर तो ये था, so not just PSIR, even my attempts, कि 6 attempts क्यों दिए, क्यों देते रहे, and optional में भी कि क्यों नहीं चेंज किया। So the reason in both these cases was कि I used to question myself कि have I given my 100%, और जब तक इस सवाल का जवाब ना आता है तब तक I feel कि नहीं, I can do better। और दिस वाज द क्राइटेरिया इनफैक्ट इन 2018, क्योंकि मेरा मेंस नहीं निकल रहा था, मैं 3 मेंस उससे पहले दे चुका था। सो इन 2018 व्हेन आई स्टार्टेड अगेन विद PSIR, आई वाज लाइक कि दिस टाइम आई विल लीव नथिंग, और अगर इस बार मेरा जो है स्कोर अच्छा नहीं आता है तो आई यू नो ड्रॉप इट। बट मैंने जितना, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा स्कोर है, बट जितना मैंने इनपुट ऐड किया उतना उस प्रोपोर्शन में आउटपुट आया। सो आई चेंज्ड माय स्ट्रेटजी, काफी कुछ बदला, एंड सो आई वाज लाइक कि ठीक है, जब तक यू नो एडिशनल इनपुट से एडिशनल आउटपुट मिल रहा है, नॉट चेंज इट। सो दैट इज वन। सो ये हमेशा सवाल पूछना कि आप ऑप्शनल चेंज कर लेंगे, आप दूसरे ऑप्शनल में भी 100% नहीं देंगे, तो इट्स नॉट दी ऑप्शनल, इट्स यू, राइट? आपको खुद को जो है एफर्ट डालना पड़ेगा। तो इट वाज मी आई थिंक, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी अप्रोच ठीक नहीं थी अबाउट दी ऑप्शनल, आंसर राइटिंग का स्टाइल ठीक नहीं था, और नोट्स मैं काफी जगह से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सो कुछ और भी चीजें मैंने चेंज की, इफ यू वांट वी कैन डिस्कस दैट, बट या दिस इज द क्वेश्चन दैट आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क, कि अगर मैंने 100% नहीं दिया है तो आई विल नॉट ब्लेम द ऑप्शनल, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बदलूंगा, चेंजेस करूंगा, बढ़ाऊंगा, एंड देन सेकंड वाज माय इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे मेरे आंसर्स ठीक नहीं जा रहे थे, बट आई वाज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, मुझे एंड इट हैपेंस, पता है, सो यू, इट्स रियलिटी कि आपको कोई ऑप्शनल पसंद हो, आपका इंटरेस्ट भी हो और आपको समझ भी आता है, एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू यू नो स्कोर मार्क्स। सो मेरा इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में, सो दैट वाज अनदर फैक्टर कि मैंने वो क्यों नहीं चेंज किया। सर अभी आपने जो लाइन कही कि यू हैव ऑलवेज क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या आपने 100% दिया, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल ये सभी के लिए रहेगा, एंड व्हेनेवर पीपल आर गोइंग टू फील लो दे विल रिमेंबर यू विद दिस लाइन। सर आपने कहा कि कुछ पॉइंट्स आप लिस्ट अप करना चाहते हैं जो ऑप्शंस में आपने ग्रेजुअली चेंज किया, तो वी वुड लव टू हियर दोस टिप्स एंड ट्रिक्स। या सो इनिशियली जो मेरे इनिशियल फ्यू अटेम्प्ट्स थे उनमें तो काफी ही खराब था, बिकॉज आई वाज, मैं बेसिक्स भी गलत कर रहा था, आई वाज राइटिंग GS टाइप आंसर्स, सो आई गॉट मार्क्स एज लो एज 170, नॉट क्यूमुलेटिवली बट लाइक इन क्यूमुलेटिवली, नॉट इन वन पेपर, तो 170 190 आई गॉट रियली पैथेटिक स्कोर बैक देन। सो धीरे धीरे कुछ चीजें चेंज की।
एक क्वेश्चन, एक वन ऑफ द थिंग्स वाज एज अ सेड कि मुझे सब्जेक्ट समझ में आ रहा था, आई हैड नोट्स, बट समहाउ जब क्वेश्चन पेपर आ रहा था तो आई वाज नॉट ट्राइंग, आई वाज नॉट गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस. तो एंड एवरीवन वाज सेइंग कि नोट्स आर इनफ, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं. बट देन आई टुक दैट कॉल एंड आई सेड कि जब 2017 में आई हैड सम टाइम, तो आई रेड बुक्स. एज आई सेड कि मैंने 2018 में काफी नई चीजें ट्राई की थी, तो दिस इज वन ऑफ दैट कि मैंने कुछ बेसिक बुक्स जैसे ओपी गौबा, एंड्रयू हेवुड, ये मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी, ग्लोबल पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स नॉट कवर टू कवर, थोड़ा थोड़ा बीच में से इंपॉर्टेंट एरिया. सो आई रेड बुक्स एंड उसके बाद भी इवन आफ्टर रीडिंग द बुक्स मेरे जो आंसर्स हैं वो नोट्स में से ही बने, वहीं से लिखे, बट आई हैड अ कॉन्टेक्स्ट नाउ टू द क्वेश्चंस. तो किस क्वेश्चन का जवाब कहाँ से मैं दे सकता हूँ, व्हाट ऑल थिंकर्स आई कैन कोट, व्हाट ऑल एरियाज आई कैन कनेक्ट विद इट, वो मुझे एक काफी अच्छा एक बैकग्राउंड मिला फ्रॉम बुक्स. तो एक तो ये, इफ देर इज समवन जो काफी स्ट्रगल कर रहा है एंड नोट्स समझ में आते हैं बट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक बुक्स कैन रियली हेल्प. तो और बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट बेसिक 3-4 बुक्स है ना. That is one. Secondly, answer writing style. जो it it has to be a mix of comparative. So if there is a question about justice, तो रोल सबसे पहले दिमाग में आता है for PSI students, which is okay, which is good. But जैसे आप इंट्रोडक्शन में if you're able to talk about justice for a moment, आप कुछ भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, like the quest for justice began with ancient Greek thinkers such as Plato, Aristotle. ऐसा करके आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं. Plato's book was subtitled क्या था, Concerning Justice or something. I'm unable to recall now, but आप वहां से start कर सकते हैं. So it gives a broader perspective. Then you narrow it down to roles and you talk about roles. And then there is also has to be a comparative perspective. तो आप roles लिख रहे हैं तो आप Dawkins भी लिखें, अमर्त्य सेन भी लिखें, Indian thinkers को भी add कर दें, Nozick भी लिखें. So this gives a broad spectrum to your answer. और आई थिंक ये चीज इनिशियली में काफी मिस कर रहा था. या तो लोग बहुत ज्यादा कोट कर दे रहे हैं थिंकर्स को, मैं कर रहा था, या फिर बहुत ज्यादा थिंकर्स बिल्कुल खत्म हो जाए. सो एक बैलेंस बीच में बना रहे, फ्लो क्वेश्चन का बना रहे, इंट्रोडक्शन जितना ब्रॉड हो सके उतना दे सके. तो इन चीजों ने मेरे जो आंसर्स थे उनको काफी इम्प्रूव किया ग्रेजुअली. सर इंटरव्यू की बात करें तो कई बार बोर्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. जैसे अगर आप एक कहीं किसी जगह के एसपी हैं, चाहे आप डीएम हैं, तो फॉर सम सिचुएशन हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल. तो कई बार जो कैंडिडेट का पर्सपेक्टिव होता है उससे डिफर करता है बोर्ड का पर्सपेक्टिव. तो ऐसी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है? Yeah, so situational questions are, I think, very important because you can prepare for the other questions, but situational question आप prepare नहीं कर सकते. And through the answers of situational questions, you have to show आपका value system कई बार दिख जाता है, and you have to tell them what your priorities are. आपसे डिजास्टर के बारे में पूछा तो आपका सबसे पहला जवाब यही होना चाहिए कि आप वल्नरेबल पॉपुलेशन को बचाएंगे, आप फूड, शेल्टर, वाटर, इनका अरेंजमेंट करेंगे. अगर आप बहुत ही कुछ अलग सा जवाब दे रहे हैं तो वो कभी कभी इट डजंट गो डाउन दैट वेल विद द बोर्ड. तो थोड़ा सा प्रिपरेशन सिचुएशनल क्वेश्चन का करना चाहिए, एटलीस्ट एक जेनरिक प्रिपरेशन होना चाहिए. Now coming to the part wherein you said कि अगर बोर्ड जो है वो it looks unsatisfied with your answer, so वहां पे it's a very dicey thing. Why? Because एक तो आप बोर्ड की satisfaction को assess कर ही नहीं सकते. No matter how good you are, they may be very well satisfied with your answer, but they may pretend कि they are not satisfied. And if you change your stand that easily, तो वहां पे problem हो जाएगा. Because जो अच्छा जा रहा था, you are not now in a trouble because आपने अपना stand बहुत जल्दी बदल दिया. Right? तो आप, और सेकेंडली अगर वो सच में आपके जवाब से अनसेटिस्फाइड हैं भी, तो भी आई फील दैट दे आर सो मैच्योर्ड एंड उनका इतना एक्सपीरियंस है दैट दे हैव अ वेरी ओपन माइंडसेट अबाउट न्यू पर्सपेक्टिव्स. सो एज लॉन्ग एज यू कैन जस्टिफाई योर आंसर, आप अच्छे ग्राउंड्स पे अपने आंसर को जस्टिफाई, दे आर ओपन टू एक्सेप्टिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स. सो आई थिंक उनके सेटिस्फेक्शन को ज्यादा असेस करने की जरूरत नहीं है. द पॉइंट इज कि आप अपना आंसर रैशनल ग्राउंड्स पे, रैशनल बेसिस पे देंगे और उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो वो ठीक रहेगा. बाकी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू रीड एंड इट्स आल्सो नॉट डिजायरेबल. उससे कुछ नहीं बदलने. सर आप कुछ टिप्स, सजेशंस देना चाहते हैं उन एस्पिरेंट्स को जो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास तौर से इतने चैलेंजिंग टाइम है, तो हाउ टू कीप फोकस एंड स्टडी?
Yeah, in fact, I wanted to talk about certain things. मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करूँगा because that is available. मुझसे बेहतर लोग हैं, वो बहुत specific tips देते हैं जो बहुत अच्छा है. But I would talk more about the mental elements that are involved in this preparation. So, like one thing is attitude. So, जैसे I've because of being there for so many years, so I have had friends जो the attitude is कि like मुझसे ये नहीं होता है और ये होता है, so I'll do what I can and I'll, so that attitude doesn't work. So I used to think in terms of what is required for the exam. If something is required for the exam, I have to mold myself into it somehow. आप तरीके निकालें, आप कुछ भी करें, आप जानते हैं अपने आप को, आप किस तरह से अपने आप को पुश कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. But the question has to be, is this really required for the exam? If the answer is yes, you have to do it. There's no question of कि वो कैसे होगा, वो आप अपने तरीके निकालें. जैसे कि अभी कोविड है और इट्स सच अ, it really is a depressing time और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. बट देन अगेन आपको तैयारी करनी पड़ेगी. वो कहते हैं ना कि when the situation gets tough, the tough gets going. So when the going gets tough, the tough gets going. तो वो जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा. You have to prepare. जो बहुत लोग जो दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका प्रिपरेशन का पूरा सिस्टम जो है डिसऑर्गेनाइज हो गया है, डिसरप्ट हो गया है. बट देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. आपको करना पड़ेगा बिकॉज द एग्जाम रिक्वायर्स. दैट इज वन. Secondly, I wanted to talk about support system because आप कितना भी आप कितना भी अच्छे हो, there is a good chance कि this exam आप इधर एक बार गिरोगे. And not I'm talking not in terms of attempts. आप during even a single year आप बहुत बार depressed हो जाते हैं and then you get back up again, right? So you have to have a support system because there's this line that I keep telling that no one wants to know your failure story till it's a failure story. So people are only interested in your failure story when it is no more a failure story, right? Two ways to put it. So वहाँ पे कोई आपके पास होता नहीं. So if you have someone जो who is there for you, some a positive positivity, positive vibe वाले लोग अपने आसपास रखना, it's very very important. I had such people. I am very lucky. अगर शायद वो नहीं होते तो मैं इतना नहीं कर पाता struggle. But I had such people, family, friends. So having a support system is very 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 important. And one last thing that I wanted to emphasize is adaptability. So the exam changes very quickly. बहुत जल्दी exam में UPSC अपने आप को improve करता रहता है. Every year they change and you have to keep changing. अगर this is especially नहीं only for those जो जिनको काफी वक्त लग जाता है मेरी तरह. तो आई थिंक कि आपको एग्जाम के हिसाब से बदलते रहना पड़ेगा. यू कांट जस्ट बी द नो इट ऑल कि नहीं आई नो इट बिकॉज आई एम अ वेटरन, तो मुझे पता है आई हैव बीन डूइंग दिस एंड यू कांट रिपीट डूइंग, यू कांट कीप डूइंग द सेम थिंग एंड कॉल इट अनदर अटेम्प्ट. सो आप सेम इनपुट डालेंगे तो सेम आउटपुट क्या आएगा. सो यू हैव टू कीप अपडेटिंग, अपने सोर्सेज अपडेट करें, अपना तरीका एग्जाम के हिसाब से स्ट्रीमलाइन करते रहें. सो दिस अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट for this exam. आप जैसा एग्जाम बदल रहा, you have to change your preparation accordingly. So these 3 points are, I think, are really really important. So I wanted to make sure कि मैं ये एंड डेफिनेटली सर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने जितने भी पॉइंट्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है. और जिस तरीके से यूपीएससी की डायनेमिक्स है उसी हिसाब से हमें भी इनबिल्ट करना है सारी एट्रीब्यूट्स एंड स्टार्ट गिविंग द बेस्ट शॉट. Thank you so much, sir, for joining us in this interactive session. We really had a great time knowing your journey, and we wish you all the very best. Thank you so much. Thank you so much, Devanshi. I had an amazing time discussing all this with you, and it has been a pleasure and a privilege. Thank you so much. Thank you so much, sir. Pleasure is all ours.